सोलर में मेनली दो ही लॉस ज़्यादातर प्लांट में मैं आज तक देखा है। तो डस्ट क्लीनिंग का ऑन टाइम नहीं होता है और समटाइम वेजिटेशन का कंट्रोल नहीं रह पाता है। वो अपना एफिशिएंसी नियर अबाउट 97-98% इन्वर्टर का होना चाहिए। पैरेलल में रजिस्टर कनेक्शन करने से रजिस्टर कम होता है। सो जितने भी आपका सर्किट है उसको पैरेलल में कनेक्ट करो एंड जो भी आइडियल स्टैंडर्डाइजेशन है उसका अर्थिंग पोल एंड उसका जो केमिकल वाला जो मटेरियल आता है उसके बेस आप करके पैरेलल कर दोगे तो 0.1 लेस देन 0.1% रजिस्टर होना चाहिए जनरली। ऑप्टिमाइजेशन स्ट्रेटेजी के लिए या आरओआई करना हो तो इसके लिए क्या कोई प्री प्लान्ड स्ट्रक्चर है कि फॉर्मेट है जो मैं फॉलो कर सकूं? आरओआई इम्प्रूवमेंट करने के लिए मेनली अपने को डेली मॉनिटरिंग करना पड़ेगा प्लांट का। पैनल के अंदर जो कनेक्टर MC4 कनेक्टर और जो वायर आता है MC4 वायर, वो अगर कहीं से कट हो गया है या सपोज कि थोड़ा सा उसका इंसुलेशन जो है वो हट गया है, तो नया केबल आपके पास है तो डेफिनेटली रिप्लेस करना चाहिए क्योंकि ये डीसी करंट है। डीसी करंट इज मोर हार्मफुल देन द एसी करंट, राइट। मॉड्यूल डिग्रेडेशन पे हम कैसे चेक करेंगे, क्योंकि वो तो नेकेड आई से पता चलता नहीं है कि मॉड्यूल डिग्रेड हो। पहले तो आप ईयर ऑन ईयर आपका जब से सोलर प्लांट इंस्टॉलेशन हुआ है तब से ईयर ऑन ईयर आप सोलर का वोट और जनरेशन आता है मंथ ऑन मंथ एज वेल एज ईयर ऑन ईयर कैलकुलेट करो। Inspection of solar plant you can check with the general ensure the completeness of boundary fencing surrounding land area and road approach. Check plant the peripheral light, pole, earthing and illumination. Check whether the monitoring system like a pyrometer, temperature sensor, wind vane and anemometer. Then check control office SCADA as well as CCTV system, plant cleanness, vegetation management and planting, corrosion, firefighting equipments. Like it's kind of general perspective of the solar plant. We can understand it from the general point of view, right? Yes. Now we can move like a solar panel and mounting structure side. Check the solar panel specification and according with the design simulation and that installed solar panel are the same character. Sometime after the sorting of solar panel or anything, sometime O&M team is not knowing very well, so they can use other rating of solar module. So it may cost to decrease the generation of that whole string. So it's a very important parameter. Similar like check the solar panel cleanness, dust, dirt, or spot, discolor of cell, damage, glass broken, like that. Check the solar panel are well oriented in south or north direction. Then check the voltage output from each string and ensure that the constitution with the design and that it's uniform across all the string. Check strings or are open voltage and short circuit voltage. So it can easily identify that which string is performing low condition, like that. Check the ensure that every solar panel is fasted. Then check the solar panel backside junction box cable with the insulator, MC4 connectors and all. Check mounting structure, foundation, corrosion, array orientation angle and related parameters. Conduit and cable are adequate to support and end to adequate shield. Otherwise, it may chance to short circuit fault. Then string monitoring box SMB, checking all the cable, then it's a conduit, copper lag, then ferruling, termination, and all that parameter related to SMB. Check the fuse protection, surge protection, contactors, and remaining switchgear equipments. It's a very important part here. If your fuse or anything is burned, that directly that loss is from the string. Then inverter control room, ICR, inverter control panel inspect board, then illumination of that inverter room, then check the inverter converter IGBT capacitor panel, check the inverter cooling system, then ACB, auxiliary transformer, control relay panel, UPS, and RTU, remote terminal unit, then inverter control room, fire extinguisher for safety purpose, also first aid kit at the room. Then check the SCADA system and inverter or illumination, CCTV, air circulation, civil work of that room. These all are essential parameters to check why you are inspect your solar plant.
Similar like inspection of substation, like general point we are not discussing. It's a very basic. Then fire and safety, check the fire bucket and its structure along with the fire extinguisher, conductor and OFC related point. Like ensure use the correct size of insulator, clamp and connector to stay wire. Check clamp for the conductor thickness and orientation. Similar for the ground clearance between the face to face and face to earth. Then DO fuse and also similar parameters. Then insulator. Check level and alignment of the bus bar, hosting assembly, ears and flange. Then checking the clearance between face to face and face to ground. Check the operation of isolator for engagement of contact during the open and close condition of isolator. Then check the equipment earthing. Delay CT and PT similar point like oil level leakage, damage, clearance, live parts, then connector and cable and earthing tightness. Then circuit breaker related point like a visual and mechanical inspection with the alignment, tightness of connection with the structure, top disc gate, tripping circuit, like that. All the circuit related point like operational with and local or remotely, then control and relay panel. Check the tightness of all the connection and earthing. Check the circuit wire and relay fuse related all the parameters. Then transformer. Transformer is one of the heart of the substation. Check for oil level, leakage in main tank, then conservator tank, HV and LV bushing. Then check the post relay. Check oil leakage from the gasket or cooling event and pipe. Check for the marshalling box and available for the OTI and WTI focus. Then check the earthing connection of the main tank and LV neutral and radiator. Similar for meter and UG cables for substation. Then similar for inspection of HV line, like general parameter you want to check, then earthing related, oil related, conductor related, hardware and its assembly related point and insulator related point. You can check your line is healthy or not. Yeah, I have that now. So thank you for this long description. You have explained everything in very detail. So participants, आपको ये PPT भी मिल जाएगा हमारे वेबसाइट, कम्युनिटी वेबसाइट है www.as1.com. उस पर मैं आपको शेयर कर दूंगा, क्योंकि ये काफ़ी डिटेल PPT है, तो आपको टाइम लगा होगा समझने में, मैं समझ सकता हूँ. तो शुरू करते हैं Q&A सेशन से. तो आप लोगों में जो भी अगर माइक ऑन करके क्वेश्चंस पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं, या मैं 1 by 1 पुट कर दूंगा. तो चेतन जी, अगर आप हैं अवेलेबल तो पूछ सकते हैं, या किसी के पास कोई सवाल है तो प्लीज. Sir, how we can check short circuit current of a string? You can check with the string. First of all, the open circuit voltage and short circuit voltage of that particularly string, as well as you can go through 1 by 1 module also. You can open the MC4 connector and check 1 by 1 module. Open circuit voltage and current. If there is any open circuit voltage and current is not matching with the similar all parameters, then you can identify the issue. When we short circuit of a module or a string, then issue? First of all, you check with the string level. Then if string level there is any difference of the voltage and modules, then you can identify. First of all, you can identify the string. Then after string, you can check with the module level. So you can easily finding out the short circuit modules or short circuit fault, like a cable fault or short circuit module fault or anything else. Okay, sir. Sir, one next question I have. Actually, how do we can calculate a CPR? PR, we are calculating PR na weather temperature related. PR calculation आप पूछना चाह रहे हैं. PR calculation. Just but sir, CPR. Oh no, performance ratio, but CPR actually weather related or temperature related na PR. How we can calculate? Not normal, sir. Okay, we can arrange one separate session for that. We are discussing similar all the KPIs, how we can calculate this all the KPIs, right? We can arrange one separate session.
PR, plant availability, grid availability, inverter performance ratio, then performance degradation ratio of that plant, then capacity utilization factor, downtime, all the things we will cover in next webinar. ओके सर, ओके, थैंक यू सर। तो सर मेरा भी एक क्वेश्चन था, जैसे कि अगर किसी प्लांट का परफॉर्मेंस चेक करना हो तो वो क्या पैरामीटर्स होगा जो मुझे साइट पर पहुंचकर चेक करना होगा कि ये प्लांट सही परफॉर्म कर पा रहा है या नहीं कर रहा है? तो पहले तो प्लांट का परफॉर्मेंस के लिए यू कैन एनालाइज योर डेटा, रो डेटा, राइट। तो पहले फॉर एग्जांपल आप जब भी ऑडिट करने या कुछ भी साइट के लिए आप चाहते हो, पहले आप चेक करो कि मेरा जनरेशन कितना आइडियल होना चाहिए फॉर द कंडीशन, स्टैंडर्ड कंडीशन है, अभी कितना निकल के आ रहा है, राइट। सो आपको पता चल जाएगा कि फॉर एग्जांपल मेरा 500 यूनिट और मोर देन 500 यूनिट और 1000 यूनिट मेरा लैप्स हो रहा है, तो आपको समहाउ आइडिया आ जाएगा कि मेरा कुछ ना कुछ जनरेशन लॉस है। उसके बाद आप प्लांट पे जाओगे तो मेनली फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन चेक विद द टू मेन पॉइंट लाइक वेजिटेशन एंड डस्ट। जो सोलर में मेनली दो ही लॉस ज़्यादातर प्लांट में मैं आज तक देखा है, तो डस्ट क्लीनिंग का ऑन टाइम नहीं होता है और समटाइम वेजिटेशन का कंट्रोल नहीं रह पाता है, तो उसके लिए मैक्सिमम जनरेशन लॉस प्लांट में रहता है। उसके बाद आप चेक करो स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग वोल्टेज एंड करंट, ओपन सर्किट वोल्टेज एंड करंट बाई स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग, ऑन प्लांट पे ही कर सकते हैं हम लोग। उसके बेस पे आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा मेरा कौन सा स्ट्रिंग अंडर परफॉर्मिंग है, तो उसके बेस पे उसके बाद आपको पता चल गया कि ये मेरा स्ट्रिंग फॉर एग्जांपल 1 नंबर ऑफ स्ट्रिंग इज लेस परफॉर्मिंग, so based on that you can take it forward like module to module, check with the open the connector of MC4 connector for module and you can check open circuit voltage and current for module level, so उसमें आपको आइडिया आ जाएगा कि मेरा कौन सा मॉड्यूल फेलियर है। इसमें एक्चुअली जनरली क्या होता है, कोई भी अपना एक मॉड्यूल शॉर्ट सर्किट और एनी एल्स फॉल्ट दे देता है, उसके लिए अपना वॉल स्ट्रिंग का पावर कट ऑफ हो जाता है, मतलब परफॉर्मेंस डाउन हो जाता है अपना। ओके, तो सबसे पहले लाइक हमें डस्ट चेक करना होगा कि डस्ट प्रॉब्लम तो नहीं है। उसके बाद हम लोग स्ट्रिंग लेवल पे मॉनिटरिंग करेंगे कि ये स्ट्रिंग सही आउटपुट दे रही है या, ठीक है। Yes. उसके बाद फिर मॉड्यूल टू मॉड्यूल चेक करेंगे, राइट। यस यस, राइट राइट। ओके, इन केस अगर इन्वर्टर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो उसके लिए भी कोई पैरामीटर से चेक करने के लिए कि इन्वर्टर में फॉल्ट आया हो। लेट्स सपोज कि मॉड्यूल से हमारा सारी चीज़ें सही आ रही है, ठीक है, डीसी जनरेशन हमारा सही हो रहा है, बट एसी में हमारा नहीं जनरेट कर पा रहा है, तो इस चीज़ को कैसे टैकल करेंगे भाई, कि क्या प्रॉब्लम इसके लिए फ्रॉम असेट मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव वी आर कैलकुलेटिंग लाइक इन्वर्टर परफॉर्मेंस रेशियो, लाइक IPR, inverter performance ratio. That's a ratio between the DC to AC. वो अपना efficiency near about 97-98% इन्वर्टर का होना चाहिए। For example, anytime your efficiency is decreased, so based on that you can directly identify something what is inside the inverter. So आप उसका कूलिंग सिस्टम चेक कर सकते हो, फिर उसका IGBT चेक कर सकते हो, उसका कनेक्शन ऑल प्रॉपर टाइटनेस एंड ऑल द थिंग्स चेक कर सकते हो। मीन्स जब भी ऐसा फॉल्ट आइडेंटिफाई होता है प्लांट में, तो अब पहले तो वो इन्वर्टर का प्रॉपरली मेंटेनेंस कर सकते हैं हम लोग, तो उसके बेस पे 99% फॉल्ट सॉल्ट आउट हो सकता है अपना। एक सरवन जी की तरफ से क्वेश्चन है, हाउ मच वैल्यू इन शुड बी फॉर रेसिडेंशियल अर्थिंग। रेसिडेंशियल अर्थिंग के लिए फोन की क्या रेजिस्टेंस की क्या वैल्यू होनी चाहिए रेसिडेंशियल में अगर हम कोई अर्थिंग करते हैं तो? जनरली रेजिस्टेंस की वैल्यू 0.1 के अराउंड होनी चाहिए, और जितने भी आप अर्थ फीट बनाओगे वो सीरीज में कनेक्ट नहीं होता है, पैरेलल में कनेक्ट होता है, क्योंकि रजिस्टर का फॉर्मूला है सीरीज में कनेक्ट करने से रजिस्टर बढ़ता है, पैरेलल में रजिस्टर कनेक्शन करने से रजिस्टर कम होता है। सो जितने भी आपका अर्थ फीट है उसको पैरेलल में कनेक्ट करो, एंड जो भी आइडियल स्टैंडर्डाइजेशन है उसका अर्थिंग पोल एंड उसका जो केमिकल वाला जो मटेरियल आता है उसके बेस आप करके पैरेलल कर दोगे तो 0.1 लेस देन 0.1% रजिस्टर होना चाहिए जनरली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सर, permissible insulation resistance value of AC cable. What is the permissible
resistance value of AC cable? I am I not think the ये best plant पर पे depend करता होगा। यस यस प्लांट पे केबल की साइज Yes. पे डिपेंड करता है, बट आई Design. थिंक अभी तक मैं कभी मेजर नहीं किया तो इतना एग्जैक्टली आइडिया नहीं है उसके बारे में। तो बेसिकली आपको क्या करना होता है, ये प्लांट पे डिपेंडेंट करता है कि प्लांट किस कैपेसिटी की है, उसके हिसाब से हम लोग एसी केबल चूज करते हैं। और जो डिज़ाइन फैक्टर्स होता है कि कितना इंसुलेशन रखना पड़ता है, वो इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट से भी देखा जाता है। ठीक है बद्री जी, तो उसी पे हमारा रेजिस्टेंस वैल्यू भी डिपेंड करेगा। श्रावण जी का एक और क्वेश्चन है, इज देयर एनी जॉब वी कैन डू फ्रॉम होम इन सोलर फील्ड विद डिप्लोमा? श्रावण जी, ये एसेट मैनेजमेंट एंड ऑपरेशन से रिलेटेड है यार। अगर आप जॉब वगैरह ढूंढ रहे हैं इस फील्ड में, तो हमारी जो कम्युनिटी है उसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं। मैं रेगुलर बेसिस पे वहाँ पर जॉब शेयर करता रहता हूँ, और इंटर्नशिप भी रहती है, तो वो आइदर ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, आप चेक कर सकते हैं। नहीं तो आप हमारे प्लेटफॉर्म पर भी जाकर चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन वी कैलकुलेट करेक्टेड परफॉर्मेंस रेशियो? इट इज बेस्ड ऑन द टेम्परेचर। ये क्वेश्चन आई थिंक आपको सर ने जवाब दिया था कि हम लोग एक नेक्स्ट सेशन करेंगे जहाँ पे आपको प्रॉपर कैलकुलेशन कि पीआर कैलकुलेशन कैसे होता है, सीपीआर कैसे होता है। क्योंकि टाइम बहुत कम है, तो मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। अगर और भी क्वेश्चन है तो करें, वरना मैं आपको सर से डायरेक्ट कुछ क्वेश्चन करना चाहूँगा जो कम्युनिटी को बेनिफिट हो सके। तो सर मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑप्टिमाइजेशन स्ट्रेटेजी के लिए या आरओआई इम्प्रूव करना हो, तो इसके लिए क्या कोई प्री प्लान्ड स्ट्रक्चर है कि फॉर्मेट है जो मैं फॉलो कर सकूं? ROI इम्प्रूवमेंट करने के लिए मेनली अपने को डेली मॉनिटरिंग करना पड़ेगा प्लांट का, एंड मेनली दो चीज़ के ऊपर फोकस करने से अपना जनरेशन बढ़ सकता है। फर्स्ट इज पैनल क्लीनिंग सिस्टम, एंड सेकंड इज द vegetation management system, and third is the regular preventive maintenance and upgrade the technology. Also you can change the aging infrastructure, like for example some modules है तो उसका शॉर्ट सर्किट हो गया कुछ है, तो उसको आप आइडेंटिफाई करके सेपरेट कर सकते हो या तो इसको रिप्लेस कर सकते हो। ये सब छोटे छोटे पॉइंट है जो कन्वर्ट होते हैं इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू में, और अपना ROI जल्दी आ जाता है जनरली। तो नेक्स्ट सेशन जब भी होगा आपको कम्युनिटी में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। मे बी 2 से 3 वीक के बाद हम लोग करें, क्योंकि इसके बाद एक और सेशन है, दिन हम लोग करेंगे। तो आप हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो जाए, मैंने जो लिंक शेयर किया है वहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। Hi Heather, I just Hi. a question regarding what are the best component available in the market who have a best assets management. As you know, there are multiple components available in the market, like string inverter, central inverter, optimizer, as well as micro inverters. So there are many features available in the market. What are the best above of? लाइक आप जानना चाह रहे हैं कि किस कंपोनेंट को हम यूज करें, किस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का, कि ज्यादा दिन तक चल पाए, राइट? No, it's Yeah, not about how it can sustain. अगर मेरी साइट पे फॉल्ट आया तो how we can solve in a minimum time. Like as I am saying, in case of string Okay. inverter, you are not able to find the faults. You have to go to the SMBs and all these things. तो देखिए, बेसिकली एसेट मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर आता है। बहुत सारी कंपनीज है जिनके पास खुद का अपना सॉफ्टवेयर होता है, तो आप उनसे बाय कर सकते हैं या उनसे बात कर सकते हैं कि हमारे प्लांट में परफॉर्मेंस चेकिंग के लिए एक सॉफ्टवेयर चाहिए। तो इससे क्या होगा, वो लोग रिमोट मॉनिटरिंग करते हैं, जिसके थ्रू अगर आपके प्लांट में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो डायरेक्टली आपके सॉफ्टवेयर पर आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी। ठीक है, अब बहुत सारी न्यू टेक्नोलॉजी आई है जिसमें आपको व्हाट्सएप पर भी मैसेज आ जाता है कि आपके प्लांट में ये प्रॉब्लम आने वाली है। वो बेस्ड ऑन कंडीशन वो या रिमोट मॉनिटरिंग से वो सारी चीज़ें कैलकुलेट करके आपको बता देते हैं। तो आप AI टेक्नोलॉजी उसमें इंटीग्रेटेड होती है। आप इन सॉफ्टवेयर्स का यूज़ कर सकते हैं अगर आप अच्छे तरीके से अपने प्लांट का एसेट मैनेजमेंट करना चाहते हैं और ROI बढ़ाना चाहते हैं तो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, डिफरेंट मॉड्यूल्स होते हैं। आपको जैसे लेट सपोज कि आपका कहीं पे इन्वर्टर में प्रॉब्लम आई है, तो वो आपको डायरेक्टली इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपके इन्वर्टर में प्रॉब्लम है, और आइदर लेट सपोज कि आपके जनरेशन सही से नहीं हो पा रही है। ठीक है, तो वो आपके डैशबोर्ड पर दिख जाएगी कि कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, आज कितना जनरेशन हुआ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको सॉफ्टवेयर के थ्रू मैनेज करना पॉसिबल हो जाएगा।
और अगर कंपोनेंट की बात करें तो आप जब भी किसी प्लांट को लगाते हैं तो आपको किसी भी कंपनी का परचेस करते हैं, ठीक है, तो उसकी मार्केट वैल्यू देखनी होती है कि ये कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है या नहीं। अगर जनरल आप किसी भी कंपनी का उठाकर लगा लेते तो होता क्या है कि हम लोग प्लांट लगा रहे हैं 25 सालों के लिए, तो अगर आप कॉस्ट कटिंग करके किसी अच्छी कंपनी से नहीं ले रहे हैं मटेरियल और प्लांट लगा रहे हैं तो क्या होगा, आपको मोस्टली डाउन टाइम फेल का सामना करना पड़ जाएगा, प्लांट डाउन टाइम में आ जाएगा, इससे आपका जनरेशन लॉस भी होगा और आपके जो क्लाइंट है उससे रिलेशन खराब भी होगी। तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि आप जब भी कुछ भी परचेस करें सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट नहीं देके, उस कंपनी की रेपुटेशन देके, क्या टेक्नोलॉजी वो यूज कर रहे हैं उन चीज़ों को देख के फिर जा करके आप डिसीजन ले कि यूज करना है या नहीं करना है, ठीक है। और सोलर एसेट मैनेजमेंट का जो सॉफ्टवेयर है ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि हमारी पेरेंट कंपनी है फ्यूचर एनर्जी वो भी प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो हम लोग मेगावाट लेवल पर भी काम करते हैं, गीगावाट लेवल तक अब तक कर चुके हैं। तो इससे क्या होता है कि क्लाइंट का रिलेशन एक ट्रांसपेरेंट रिलेशन बन जाता है, क्लाइंट देख पाता है कि उनमें क्या प्रॉब्लम आई है, अगर कुछ प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो रहा है तो वहाँ पर टिकट मैनेजमेंट सिस्टम होता है, तो क्लाइंट देख पाता है कि अभी जो ये प्रॉब्लम है क्यों नहीं सॉल्व हुई है, किस स्टेज पर है ये, है ना, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, वो सारी चीज़ें आपको डैशबोर्ड पर मैनेजेबल रहेंगी, आप देख सकते हैं। तो सर मेरा एक क्वेश्चन है कि लाइक व्हाट आर द फंडामेंटल डिफरेंसेस इन मेंटेनेंस रिक्वायर्ड बिटवीन सोलर एंड विंड पावर, जैसे कि आप विंड में भी काम कर चुके हैं, है ना, राइट, Yes. और अब सोलर में भी आप कर रहे हैं, तो अगर मेंटेनेंस पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो क्या ऐसी फंडामेंटल डिफरेंसेस आपको दिखती है, क्या वहाँ पर ज्यादा टाइम लगता है, यहाँ पर कम लगता है, या क्या वहाँ कॉस्ट ज्यादा इन्वॉल्व होता है, इन सारी चीजों को समझना है। ओके देखो हम सोलर और विंड को कंपेयर करें तो सोलर का जनरेशन मोस्ट प्रोबेबली इन 12 मैक्सिमम 10 to 12 आवर्स रहता है, दिन में फिक्स रहता है और नाइट में ऑफसेट हो जाता है, राइट, सोलर का जनरेशन। जैसे कि विंड का जनरेशन बेस्ड ऑन विंड फ्लक्चुएशन होता है अप एंड डाउन। ऑल्सो सेकंड वन मोर इम्पोर्टेंट पैरामीटर लाइक हम बोलेंगे कि 50 मेगावाट सोलर प्लांट, तो उसका एक दिन का 50 मेगावाट मैक्सिमम कैपेसिटी रहेगा। जब हम बोलेंगे कि 50 मेगावाट ऑफ विंड प्लांट, इसका मीनिंग होगा कि पर आवर विंड फार्म में से 50 मेगावाट मैक्सिमम निकल सकता है, बेस्ड ऑन एनवायरमेंट कंडीशन इट कैन वेरी। तो एक मेन डिफरेंस तो ये है, सोलर में जो भी कैपेसिटी बोलेंगे वो पूरा दिन का रहेगा, विंड में जो भी बोलेंगे वो पर आवर का रहेगा। सेकेंडली हम बात करें मेंटेनेंस पॉइंट ऑफ व्यू, सोलर में कंपेयर टू सोलर एंड विंड, सोलर में बहुत लेस मेंटेनेंस है। वन ऑफ द main maintenance is like module cleaning and vegetation control, while in wind farm इसमें मेनली रहता है लुब्रिकेशन का, बिकॉज सोलर में स्टेडी स्टेट पोजीशन में प्लांट रहता है, वैसे कि इन विंड में कंटिन्यूस रोटेटिंग ऑल द इक्विपमेंट्स रहता है और वो भी 24/7। सो उधर मेंटेनेंस भी बढ़ जाता है कंपेयर टू लुब्रिकेशन एंड ऑल, वो भी चीज़ें बढ़ जाती है कंपेयर टू सोलर। ऑल्सो नंबर ऑफ एरर सोलर में कम है, विंड में कंपेयर टू विंड सोलर ज़्यादा रहती है नंबर ऑफ एरर्स। एंड ऑल्सो सोलर अपना ग्राउंड लेवल पे रहता है प्लांट, तो उसमें मेंटेनेंस में आई थिंक इतना ट्रबल नहीं रहता है, जबकि विंड में 120 मीटर 140 मीटर 150 मीटर वर्केड हाइट पे जाके काम करना रहता है, तो वो एक थोड़ा चैलेंजिंग पार्ट बन जाता है। वो दोनों का जनरली मेन डिफरेंस है। तो ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि जो सोलर हमारा जनरेशन वो डिपेंडेंट सोलली दिन पे रहता है क्योंकि उसमें रेडिएशन की जरूरत पड़ती है, एंड विंड कभी भी जनरेट कर सकता है, राइट। और Yes. मेंटेनेंस पर्सपेक्टिव से अगर देखते हैं तो विंड में ज़्यादा डिफिकल्टीज हो जाती है क्योंकि उसमें हाइट पे काम करना पड़ता है, मूविंग पार्ट्स टर्बाइंस होते हैं। सोलर में डेफिनेटली सर, वेरी गुड एक्सप्लेनेशन। सो सर एक सरवण जी का क्वेश्चन है, व्हाट इज वेजिटेशन कंट्रोल, ये वेजिटेशन कंट्रोल क्या है इनको समझना चाह रहा है। तो वेजिटेशन कंट्रोल के लिए आप दो चीज कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर द मानसून सीजन यू कैन ट्रेनिंग ऑल द 100% वेजिटेशन। वंस मानसून सीजन आता है, अपना वेजिटेशन ग्रो होने वाला ही है, तो उसमें आप पेस्टिसाइडर दवाई का यूज कर सकते हो। ऑल्सो कंटिन्यूअसली आप प्लांट में 2-3 लेबर को यूज करके कंटिन्यूअसली उसको मेंटेन करना पड़ेगा। वो दो ही चीज है कि आप वेजिटेशन को कंट्रोल कर पाओगे, उसका और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। और वो
सेल्फ ग्रोइंग विद द नेचर है, तो उसका हम ज़्यादा कंट्रोल भी नहीं कर पाएंगे। या तो पेस्टिसाइड्स दवाई का यूज़ करो, या तो मेन पावर से आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। सर मेरा एक क्वेश्चन है सर। हेलो जी जी पूछिए। सर, आप वेजिटेशन कंट्रोल के लिए पेस्टिसाइड का यूज कर सकते हैं क्या एज पर गवर्नमेंट पॉलिसीज? गवर्नमेंट पॉलिसी के अकॉर्डिंगली तो वैसे भी नॉन एग्रीकल्चर लैंड हो जाती है, बाद में ही अपना सोलर प्लांट डलता है, राइट। सो अपना सोलर जनरेशन को इम्प्रूव करना है तो नॉन पेस्टिसाइड दवाई का यूज़ करना ही पड़ेगा। तो ये बट अपना सर रेनी सीजन में सर, जैसे बोले आपने सर रेनी सीजन में करते हैं, वैसे ही आसपास जैसे अपने प्लांट के आसपास दूसरे एग्रीकल्चर में लैंड है, तो वो बरसात के अंदर वाटर फ्लो हो सकता है, उनके एरिया में जा सकता है, तो प्रॉब्लम तो आ सकती है सर ना। बट आप रिवर के पास में है प्लांट। यस। यस, डेफिनेटली हो सकता है। तो उसके लिए आप क्या करो, जब आप वेदर फोरकास्ट ऐप का यूज़ करो, आपको पता चल जाए कि कब रेनिंग टाइम है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप प्लान करो दवाई का। तो वो आप कंट्रोल कर सकते हो साइट लेवल पे बेस्ड ऑन वेदर फोरकास्टिंग एप्लीकेशन। फ्री आजकल विंडी और ये सब फ्री वेदर एप्लीकेशन ऑलरेडी अवेलेबल है, गूगल में भी अपना एप्लीकेशन अवेलेबल है, फोरकास्ट डे अहेड, 2 डे अहेड, 3 डे अहेड। तो आपको उसके अकॉर्डिंगली प्लान करने का कि बारिश ना होए उसके पहले ही मेरा प्लान खत्म हो जाए। सर एक क्वेश्चन मैं समझना चाहूँगा कि लेट सपोज कोई साइट इंजीनियर साइट पर गया है, वो सारी प्रॉब्लम्स चेक कर रहा है, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया स्ट्रिंग है, वो सारी प्रॉब्लम्स चेक करने के बाद भी उनसे कोई फॉल्ट नहीं दिख रही है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि मॉड्यूल कुछ दिनों के बाद डिग्रेड होना शुरू हो जाता है, राइट। तो मॉड्यूल डिग्रेडेशन पे हम कैसे चेक करेंगे, क्योंकि वो तो नेकेड आई से पता चलता नहीं है कि मॉड्यूल डिग्रेड हो रही है, तो इसको हम लोग कैसे टैकल करेंगे और कैसे चेक कर सकते हैं? यस, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहले तो आप ईयर ऑन ईयर आपका जब से सोलर प्लांट इंस्टॉलेशन हुआ है, तब से ईयर ऑन ईयर आप सोलर का वोट और जनरेशन आता है मंथ ऑन मंथ एज वेल एज ईयर ऑन ईयर कैलकुलेट करो कि मेरा इतना इरेडिएशन था ये जनवरी मंथ में और इतना जनरेशन था। बेस्ड ऑन दैट ऐसा आपके पास एक एनालिसिस रहेगा, तो आपको पता चल जाएगा कि मेरा साल का 1 मेगा, फॉर एग्जांपल 1 मेगावाट है, तो 15 लाख यूनिट जनरेशन निकल के आया है फर्स्ट ईयर में। सेकंड ईयर में वो 1% डाउन होता है जनरली मॉड्यूल के एफिशिएंसी के अकॉर्डिंगली। तो अगर आपका जनरेशन 1% से ज़्यादा डाउन आया, तो आपको साइट लेवल पे जाके सब स्ट्रिंग चेक करने की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल आपके पास 20 स्ट्रिंग्स अवेलेबल है, तो आप 20 स्ट्रिंग को पहले चेक करो, उसमें से आपको पता चलेगा कि और 2 स्ट्रिंग में पावर कम मिल रही है। वो 2 स्ट्रिंग का टोटली मॉड्यूल को MC4 कनेक्टर को डिस्कनेक्ट करो, 1 मॉड्यूल को आप चेक करो, कोई मॉड्यूल शॉर्ट सर्किट है, या तो फिर शॉर्ट सर्किट हो गया है, या तो फिर उसका पावर एफिशिएंसी कम हो गया। वो आपको ओपन सर्किट वोल्टेज एंड करंट से पता चल जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंगली आप आइडेंटिफाई करो कि मेरा ये स्ट्रिंग पहले तो लो परफॉर्मिंग कर रही है, ऊपर से वो स्ट्रिंग में आपने और भी डीप में चेक करना है एक एक मॉड्यूल एंड उसका केबल। कभी कभी क्या होता है, केबल का ज़्यादा जनरेशन कंटिन्यूस होता है, तो उसका केबल का स्लीप जो इंसुलेटर रहता है वो भी बर्न आउट हो जाता है, और उसका भी डायरेक्टली एयर और इसका सब कॉन्टेक्ट के थ्रू फ्रेम के साथ टच रहता है और समथिंग जनरेशन लॉस प्रेजेंट रहता है। कभी कभी ऐसी भी कंडीशन है, मेरा एक साइड था उसमें सेम ऐसे ही था इश्यू। पूरा प्लांट में मैक्सिमम जो MC4 कनेक्टर का केबल रहता है उसका इंसुलेशन किधर किधर ब्रेक हो गया था। मेरा जनरेशन कम आ रहा था, मैंने सारी चीज़ें चेक करवा ली, फिर भी जनरेशन कम आ रहा था। तो मैंने फिर पूरा केबलिंग जो था वो चेंज किया, जो रिपेयर हो सकता था उसको रिपेयर किया। उसके बाद मेरा 1.5% जनरेशन अप हो गया। और मैंने एक और भी चीज़ किया था, लाइक जो भी डिग्रेडेशन रिलेटेड मॉड्यूल मेरे को 1-on-1 मॉड्यूल चेक किया, उसमें जो भी मॉड्यूल मेरे को मिला के शॉर्ट सर्किट है, या तो फिर उसमें डिस्कलर सेन हो गया है, और ओपन सर्किट वोल्टेज एंड करंट जितना वैल्यू सबका मिलना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है, वो सब मॉड्यूल मैंने अलग से एक स्ट्रिंग बनाया, जो ओरिजिनल मॉड्यूल था उसका रिप्लेसमेंट उधर से हम कर दिया। और बाद में जब भी अपना बजट और ये सब रहेगा, तब वो जो डैमेज मॉड्यूल्स है उसको रिप्लेस करके फिर से सेम रेटिंग का नया मॉड्यूल डाल सकते हैं। तो ऐसे करने से आपको जो भी परफॉर्मेंस डिग्रेडेशन है वो कैलकुलेशन तो एनालिसिस से आपको पता चल ही जाएगा मेरा 1% है या नहीं है। दूसरा चीज़, अगर आपका 1% से ज़्यादा लॉसेस है
उसका मीनिंग का नहीं होना चाहिए, फिर भी है तो आप ऐसे स्ट्रिंग लेवल एंड मॉड्यूल लेवल चेक कर सकते हैं। सर जैसा आप बता रहे हैं कि स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग पहले चेक करना पड़ेगा, फिर मॉड्यूल तक पहुंचना पड़ेगा, तो इसमें तो सर बहुत सारी सेफ्टी प्रिकॉशंस भी हमें फॉलो करना पड़ेगा, राइट? तो यस यस। क्या कोई आप एक ऐसा स्टैंडर्ड सेफ्टी प्रिकॉशंस फॉर्मेट बता सकते हैं जो साइट इंजीनियर अगर इंस्पेक्शन करने जाता है तो उसे फॉलो करना चाहिए? नहीं तो पहले सेफ्टी की बात करें तो आजकल वो बहुत एसेंशियल चीज़ है। सेफ्टी में फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पहले तो परमिट एंड ऑथोराइज पर्सन एक साइड पे होना चाहिए, उसके बिना किधर भी एक्टिविटी आपका नहीं होना चाहिए, तो एक वो ऑटोमेटिक कंट्रोलिंग आ जाएगा सेफ्टी पे। दूसरा चीज, जो भी एक्टिविटी करने परफॉर्मिंग करने के लिए जा रहे हैं तो उसके लिए प्रॉपर पीपीस, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स लाइक बेसिक लाइक सेफ्टी शूज एंड ग्लोव्स, देन हेलमेट एंड सेफ्टी ग्लोव्स, रिमेनिंग ऑल द सेफ्टी रिलेटेड इक्विपमेंट्स उसके पास अवेलेबल प्रॉपरली है या नहीं है। फिर फॉर एग्जांपल वो स्ट्रिंग का वोल्टेज और करंट चेक करने जा रहा है तो ऑब्वियसली वो मल्टीमीटर लेके जाएगा, तो वो मल्टीमीटर कैलिब्रेटेड है, ऊपर उसका कंडीशन प्रॉपर है कि नहीं, वो सब चीज चेक करके बाद में उसको प्लांट पे जाना चाहिए। और कोई भी काम करने से पहले सेफ्टी का 100% अश्योरिटी रखना ही चाहिए एज अ साइट इंजीनियर और साइट मैनेजर दोनों को। तो आप मेनली जो भी पीपीस और जो भी एज पर द प्रोटोकॉल सेट करके रखा है उसके अकॉर्डिंगली आप काम करोगे। ऑब्वियसली ये 5-10 मिनट टाइम ज़्यादा लगेगा, बट विथ द सेफ्टी इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। सर एक सवाल मेरा था, जैसे कि हम रेजिडेंशियल में भी काम करते हैं, तो रेजिडेंशियल में 41 मतलब उसका वी मैक्स आता है और ओपन सर्किट 49 आता है। तो जब हम इन्वर्टर में जब उसका डीसी वोल्टेज PV1 और PV2 अगर चेक करते हैं तो वो वोल्टेज अगर सपोज 10 पैनल हम काम में ले रहे हैं तो वो एग्जैक्ट वोल्टेज कितना आना चाहिए, कैसे मेजर करेंगे? क्योंकि अगर 41 को भी अगर 10 से मल्टीप्लाई करें या 49 को भी मल्टीप्लाई करें तो इन दोनों के बीच ही रेंज आती है, और समटाइम ये 410 वोल्टेज से भी कम आएगा। तो ये कैसे होता है कि हम इन्वर्टर में जो वोल्टेज शो कर रहे हैं उसके थ्रू हम पैनल कैलकुलेट कर सकते हैं क्या, एक स्ट्रिंग में कितने पैनल हैं? वो आप डिजाइनिंग बेस्ड क्वेश्चन है काइंड ऑफ। उसके लिए आप तो पहले तो प्रॉपर वेदर है तब आपको टेस्ट करना चाहिए। एक चीज़ ये भी, आप अर्ली मॉर्निंग चेक करोगे वैल्यू अलग देगा, और इवनिंग में चेक करोगे तो भी वैल्यू अलग देगा। तो ओपन सर्किट जब भी आपको प्रॉपर टेस्ट करना है तो सेचुरेटेड लेवल पे लाइक 2 PM और ये जो भी सन का मैक्सिमम पोजीशन है तब आप चेक करो। दूसरा कि जिसने भी आपका डिजाइनिंग किया है उसको प्रॉपरली वोल्टेज एंड करंट का फिगर ले लो। फॉर एग्जांपल तुम्हारा एक मॉड्यूल का करंट एंड वोल्टेज XYZ जो भी है, फिर तुम 10 मॉड्यूल को सीरीज में कनेक्ट कर रहे हो तो उसका वोल्टेज एंड करंट इतना होना चाहिए। फिर तुम क्रॉस वेरीफाई करो कि इन्वर्टर में सेम वैल्यू आ रहा है और नहीं आ रहा है। वो भी आप 2 बजे के आसपास पीक पॉइंट पे चेक करो तो आपको सिमिलर वैल्यू मिल जाएगा। ओके, तो ये 41 के सिमिलर आना चाहिए या मतलब वी मैक्स के सिमिलर आना चाहिए या VOC के सिमिलर आना चाहिए? आप ओपन सर्किट ले रहे हो तो VOC के सिमिलर आना चाहिए, और आप मॉड्यूल शॉर्ट अगर कर रहे हो तो short। जैसे कि इन्वर्टर के अंदर अगर इन्वर्टर के डिस्प्ले में हम चेक कर रहे हैं ओके तो वो वी मैक्स के इक्विवेलेंट आना चाहिए वोल्टेज। ओके। बट जनरली हम जैसे चेक करते हैं वीक टाइम में भी चेक करते हैं तो भी वो डाउन मिलता है। जैसे अगर 41 के 10 पैनल है तो 410 वोल्टेज नहीं मिलके 380 385 के अराउंड मिलता है। तो देखो पहले तो 3% इन्वर्टर का लॉस रहता ही है जनरली। इन्वर्टर का एफिशिएंसी 97 to 80% रहता है, मतलब जो भी DC to AC रेशियो है कन्वर्जेशन वो वाला, तो आपका 3% लॉस उधर रहेगा। फिर आप चेक करो कि तुम्हारा केबल रिलेटेड और एनी अदर शॉर्ट सर्किट और शेडो लॉस और भी कुछ लॉसेस अवेलेबल है क्या, वो भी आपको चेक करना पड़ेगा। कभी कभी आप पूरा स्टैंडर्ड कंडीशन से कर रहे हो, इधर शॉर्ट सर्किट फॉल्ट छूट गया है और किधर भी आपका शेडो लॉस जा रहा है, तो उसके रिलेटेड भी आपका उतना जनरेशन कम मिलेगा। और 100% आइडियल सब चीज रहेगा, मीन्स कि जीरो लॉसेस रहेगा, तो आपको जो भी आपका एग्जैक्ट फिगर है वो मिल जाएगा। ऊपर से आपका टिल्ट एंगल क्या है, जो मैं पहले ही अपना प्रेजेंटेशन डिस्कशन किया, वो भी एक चेक करना पड़ेगा कि आपका जो भी लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड है उधर वो एंगल जो भी हमने इंक्लाइनेशन एंगल अज्यूम है
टिल्ट एंगल सेट किया है वो करेक्ट है कि नहीं, वो सारा पैरामीटर चेक करने के बाद तुमको एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगा। कभी कभी ओके क्या सर। रहता है, जनरली रूफटॉप में लोग 15 डिग्री और 20 डिग्री लाइक एक कॉमन आइडियल पकड़ के सब रूफटॉप सिस्टम में अप्लाई कर देते। कभी कभी वो लेटीट्यूड के हिसाब से माइनर एंगल चेंज होना चाहिए, अपन लोग करते नहीं है, फिर बोलते हैं मेरा जनरेशन अप टू द स्टैंडर्ड नहीं आ रहा है। एक ये भी एक रीजन हो सकता है। हाँ, ये मोस्ट ऑफ यहाँ 750 लेके चलते हैं राजस्थान में, जोधपुर साइड में। ओके ओके, नहीं वो सबका जनरली अपने इंडियन का मैक्सिमम लोग यही पकड़ के स्टैंडर्ड चल रहा है। उसमें भी जो 15 डिग्री एग्जैक्ट होना चाहिए वो भी है कि नहीं वो भी चेक करो आप, इंक्लाइडोमीटर से चेक करो कि एंगल 15 ही है और ज़्यादा है या कम है, उसके अकॉर्डिंगली भी आपको 1-2% लॉस मिलेगा। ओके। एंड एक सिंपल क्वेश्चन था, जो डीसी पैनल के अंदर जो कनेक्टर MC4 कनेक्टर और जो वायर आता है MC4 वो डीसी वायर जो में मिलता है, वो अगर कहीं से कट हो गया है या सपोज कि थोड़ा सा उसका इंसुलेशन जो है वो हट गया है, तो उसको हम टेपिंग करके काम ले सकते हैं या वायर चेंज करना बेटर रहेगा? और नया केबल आपके पास है तो डेफिनेटली रिप्लेस करना चाहिए, क्योंकि ये डीसी करंट है। डीसी करंट इज मोर हार्मफुल देन द एसी करंट, राइट। ऑल्सो आपके पास केबल नहीं है तो एटलीस्ट ज़्यादा इंसुलेशन टेप का यूज़ करके भी काम चलाओ के लिए आप कर सकते हो, बट बेस्ट पॉसिबल मेथड है कि आप उसको है तो रिप्लेस ही कर दो। इंसुलेशन की आप उसको इंसुलेशन करके कर सकते हैं। आप उसको कट करके एक नया MC कनेक्टर भी वहां से ज्वाइंट कर सकते हैं। थोड़ा लॉस होता है बट आप उसमें कट मोड लगा करके जो है फीमेल और मेल कनेक्टर आपस में अटैच कर सकते हैं। का क्वेश्चन था फर्स्ट वाला कि कंप्लीट आपको भी उसी नहीं मिल पा रहा है, तो होता क्या है, जो भी पैनल्स हम लेते हैं ना वो STC पे चेक होकर के आता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर कंडीशन पे। तो अगर आप उस चीज़ों पर चेक करते हैं लाइक 1000 वाट पर मीटर स्क्वायर उसको इंसोलेशन मिलना हो, ठीक है, एयर मास एग्जैक्ट हो जितना लेबोरेटरी में चेक किया गया, तब जा करके आपको उतना मिल सकता है। लेकिन जनरली जब हम लगाते हैं तो जैसे सर ने बताया इंसुलेशन डिग्री अलग होती है, इंसुलेशन सही से नहीं मिल पाता है, शेडिंग लॉस हो सकता है, तो आपको ये सारी चीज़ें देखनी होगी कि क्या पैनल्स गंदा तो नहीं है, क्योंकि उस पर जनरेशन डिपेंड करता है। शेडिंग अगर आ रही है तो उस पर, इसके अलावा क्या है कि वायर लॉस भी होता है, अगर आपका जो DC वायर का लेंथ है वो भी अगर लंबा है तो उसमें भी आपका लॉस होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी। सर ने जो PPT क्रिएट किया है इसमें आपको उन लॉसेस के बारे में डिटेल से बताया गया है कि क्या स्वाइलिंग लॉस होता है, इलेक्ट्रिकल लॉस क्या है, इन्वर्टर लॉस क्या है, ये सारी चीज़ें आपको उसमें मेंशन मिलेगी, ठीक है। ओके, थैंक यू सर। ठीक है, तो सर मैं एक से दो क्वेश्चन और करना चाहूँगा, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है तो कम क्वेश्चन रखते हैं ऐसे। ये बहुत ही इंसाइटफुल सेशन था। तो सर मेरा एक क्वेश्चन ये रहेगा कि आप जैसे कि बता रहे थे आप डेटा पॉइंट्स पे काम करते हैं, एनालाइज करते हैं कि अगर कोई प्लांट डाउन टाइम में चला गया, परफॉर्मेंस दे रहा है तो उसको चेक करते हैं। तो इसके लिए आप सर किन किन डेटा का चेक करते हैं? व्हाट आर दी इसेंशियल डेटा और ऑप्टिमाइजिंग द सोलर प्लांट? फर्स्ट ऑफ ऑल साइट का जनरेशन डिटेल, देन इन्वर्टर का सब पैरामीटर लाइक करंट, वोल्टेज, देन उसका कूलिंग सिस्टम रिलेटेड पैरामीटर। कभी कभी क्या रहता है इन्वर्टर में उसका टेम्परेचर जो भी होना चाहिए पैनल का उनसे भी बढ़ जाता है, एक्सीड हो जाता है, उसके लिए तुम्हारा जनरेशन लॉस आता है ड्यू टू द टेम्परेचर हीटिंग। है सिंपल पैरामीटर, बट तुमको सब चीज चेक करोगे सब नॉर्मल मिलेगा, फिर भी ड्यू टू द वन टेम्परेचर पैरामीटर ओनली यू कैन लॉस योर जनरेशन। then string current, voltage and all the basic parameter, then अपना वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम का पैरामीटर के स्टैंडर्ड वही लॉन्जिट्यूड पे क्या है रियल वेदर कंडीशन, उसके अगेंस्ट में जनरेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये सब जो रो डेटा है उसका हम यूज़ करके सब KPIs में कन्वर्ट करते हैं फॉर्मूला बेस, जो हम नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे। तो बेसिकली लाइक जो वेदर्स में आप लोग क्या क्या इंसुलेशन देखते होंगे जो पायरोनोमीटर से कैप्चर हो जाती है, राइट? यस यस, और इस तरीके की कौन कौन सी डिवाइस होती है? एम्बिएंट टेम्परेचर वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम में मेनली आएगा तुम्हारा एम्बिएंट टेम्परेचर, देन इल्यूमिनेशन,
And cloud cover is one of the most important for solar. And wind speed and remaining parameter ठीक है, डेंसिटी और ये सब मिलेगा नहीं मिलेगा चलेगा, बट ये जो फर्स्ट 4 पैरामीटर है वो एग्जैक्ट चाहिए अपने को। इसके बेस पे आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि पावर मेरा ये स्टैंडर्ड कंडीशन है, नंबर ऑफ मॉड्यूल इतना है तो इतना जनरेशन होना चाहिए। फिर तुम कंपेयर करोगे कि ये एनुअल यील्ड के साथ रियल जनरेशन है या नहीं है, कितना लॉसिस है। वो लॉसिस के ऊपर फिर डिस्कशन डीप में एनालिसिस होता है कि वो लॉसिस कहाँ पे जा रहा है, स्वेलिंग लॉस में जा रहा है, शेडो लॉस में जा रहा है, और इलेक्ट्रिकल हीटिंग लॉस और एनी शॉर्ट सर्किट और एनीथिंग अदर लॉस में जा रहा है, काइंड ऑफ दिस। तो सर ये डेटा का यूज करके क्या किस तरीके से प्लांट के परफॉर्मेंस को बढ़ाया जा सकता है? लाइक जो अर्ली डिटेक्शन, अगर हम इन चीज़ों को लेते हैं, रेडिएशन कैप्चर करते हैं, वेदर ले रहे हैं, तो बेसिकली हम लोग प्रॉब्लम को आने से पहले आइडेंटिफाई कर देते हैं, अर्ली आइडेंटिफिकेशन हो जाती है कि क्या प्रॉब्लम आने वाली है, राइट? अगर किसी Yes, टेम्परेचर इन्वर्टर का टेम्परेचर बढ़ रहा हो या मॉड्यूल्स का, तो अगर हम इन सारी चीज़ों को लेते हैं, मतलब तो इस क्या इम्पैक्ट पड़ता है अगर जनरेशन लॉस होने से अगर हम बचा लेते हैं, तो कितने परसेंटेज का बेसिकली डिफरेंस रहता है? अगर कोई एक प्लांट है जहाँ पर ये सारी डेटा आपको नहीं मिल पा रही है और कोई दूसरा प्लांट है जहाँ से आपको डेटा मिल रहा है, तो क्या परसेंटेज ऑफ डिफरेंस रहता है जनरेशन में? ओके, फॉर एग्जाम्पल रफली अगर हम देखते हैं तो या एक 1 मेगावाट के लिए हम बात करें तो एक प्लांट में पूरा डेटा आपके पास अवेलेबल है, रो डेटा, और उसमें आप AI/ML और IoT प्लेटफॉर्म थ्रू डैशबोर्डिंग आपके पास है, तो उसमें हमको सब अर्ली डिटेक्शन, एनोमली डिटेक्शन, मतलब कुछ भी चीज़ हो गया तो तुमको तुरंत रिफ्लेक्शन दे देगा। जो कि हम मैनुअल में क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे तब पता चलेगा इसका टेम्परेचर बढ़ गया है, ये स्ट्रिंग में पावर लॉसिस जा रहा है, पर वो कितने दिन से जा रहा है वो अपने को नहीं पता चलेगा। तो जो भी ये डिफरेंस रहेगा वो यही है, मैनुअल में हम सब चीज़ करेंगे मैन्युअली, बट उसमें कभी कभी वो स्ट्रिंग 15 डे से लॉस कर रही है या 1 मंथ के लॉस कर रही है, वही सेम पैरामीटर तुम ये डैशबोर्ड और ये सब चीज़ यूज़ करोगे तो सेम डे पे आपको रिफ्लेक्शन करेगी कि योर स्ट्रिंग नंबर 1 इज लो परफॉर्मिंग, और उसमें टाइम भी नोट डाउन आ जाएगा। तो आपको दूसरे ही दिन उसमें तुम जो भी एक्शन ले लोगे, चेक कर लोगे सब पैरामीटर, कुछ मॉड्यूल मिला, शॉर्ट सर्किट और एनीथिंग केबल रिलेटेड लॉस मिला, तो तुम तुरंत उसको रिजॉल्व कर लोगे। तो काइंड ऑफ 1 मेगावाट प्लांट है तो उसमें आपको नियर अबाउट मिनिमम 5% तो आपको इम्प्रूवमेंट मिलता ही है ये डैशबोर्ड और ये सबसे। सेकंड एडवांटेज, मेन पॉइंट है कि तुम्हारा जो भी कोई क्रिटिकल कंपोनेंट है उसको फेलियर करने से बचाता है, वो सबसे ज़्यादा कॉस्ट कटिंग है। तुम्हारा इन्वर्टर ही है फॉर एग्जांपल, उसका टेम्परेचर एग्जिट कर रहा है, ओवरलोड में चल रहा है, फिर भी वो चल ही रहा है कंटिन्यू, और इन्वर्टर पूरा ब्रेकडाउन में आ जाएगा, फिर उसका रिप्लेसमेंट कॉस्ट और वारंटी में फिर भी उसका जनरेशन लॉस का जो कंपेयर करेंगे, तो ये वाला जो है सिनेरियो बहुत हेल्पफुल रहेगा। उसमें भी आप अप टू द 10% आपको मिलेगा कि कंपोनेंट फेलियर आपको अप टू 10% आप कम कर सकते हैं, ये सब AI/ML और IoT प्लेटफॉर्म थ्रू, एंड 15 अप टू 15% जनरेशन इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं अगर हमारे पास फुल डेटा सेट अवेलेबल है तो। इससे पता चलता है कि एसेट मैनेजमेंट का कितना बड़ा रोल है हमारे सोलर इंडस्ट्री में, क्योंकि इतना ज़्यादा इम्पैक्ट करना है ना, और ये अच्छी बात है कि हम जो भी डैमेज होने वाला है उससे पहले ही हमें पता चल जाए और हम ठीक करें। तो बेसिकली एसेट मैनेजमेंट एक काफ़ी बड़ा रोल प्ले करता है हमारी इंडस्ट्री में, चाहे वो एज ए इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से हो या आप इंजीनियर है, तो आपका भी काम कहीं ना कहीं कम हो जाता है। आपको पहले पता लग जाता है कि ये इन्वर्टर फेलियर होने वाला है, तो आप उसको पहले टैकल कर लेते हो। तो ये सबके लिए, जो पार्टी जो उसका ऑनर होगा उसके लिए भी सही है कि वो जनरेशन लॉस से बच जाती है, और जो कंपनी है उनको भी बेनिफिट होगा कि ज़्यादा डाउन टाइम चेस नहीं करना पड़ेगा, पेनल्टी नहीं लगेगी, है ना? यस, यही मेन डिफरेंस है कि O&M वाला ऑन द फील्ड सारा काम करता है, जो कि एसेट मैनेजमेंट वाला बैक द फील्ड सारा काम करता है, वही दोनों का Yes, difference है। डेफिनेटली ये वन लाइन आंसर था, सही है। यस, लास्ट और क्वेश्चन मैं करना चाहूँगा, जो कि आप देख रहे हैं अभी कि जिस तरीके से AI हमारी इंडस्ट्री में ग्रो कर रहा है और हम लोग इस चीज़ का यूज़ कर पा रहे हैं, तो आप AI का और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं आने वाले टाइम में?
क्या और भी चीज़ें इम्प्लीमेंट हो सकती है जिससे फील्ड इंजीनियर्स कम होंगे या फील्ड में प्रॉब्लम कम आएंगी? फील्ड में जो भी अपना इंजीनियर्स और टेक्नीशियन चाहिए उतना तो अपने को चाहिए ही का, बट AI/ML से एक तो अपनी ट्रांसपेरेंसी रहेगी। कभी कभी क्या होता है प्लांट में ये सब फॉल्ट रहता है, अपन O&M वाला स्टेयर नहीं करता कि अब ये फॉल्ट है और अब तुम्हारा जनरेशन लॉस जा रहा है क्योंकि उसके पास स्पेयर अवेलेबल नहीं है, और भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। और कि अपना AI और ML मॉडल लग जाएगा तो अपने को डायरेक्टली ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी कि हाँ ये चीज़ है, ये फॉल्ट है। फिर O&M वाला सोल्व करेगा या नहीं करेगा वो बात की बात है, पर अपने को ट्रांसपेरेंसी आ गई। फॉल्ट O&M वाला बताएगा, उसके पहले ही अपने को पता चल गया। सेकंडली तुम्हारा पूरा हिस्टोरिकल डेटा है वो क्लाउड बेस्ड और ऑन प्रेम, जो भी आप सॉल्यूशन चूज करेंगे उसके बेस पे डेटा स्टोर रहेगा आपका। सो उसके बेस पे AI और ML मॉडल है वो एक पूरा सेट बनाता रहेगा कि ये प्लांट को किस किस टाइप का वेदर कंडीशन है तो कितना जनरेशन आइडियली देता है, क्या है, एक पूरा साइकिल बन जाता है उसका। तो वो भी एक इम्पोर्टेंट पैरामीटर है। उसमें जॉब में इम्पैक्ट नहीं आएगा, पर डेफिनेटली उसका परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा और जो मटेरियल है फेलियर उसका कॉस्ट कम लगेगा। तो ये दोनों इम्प्रूवमेंट से मैं देख रहा हूँ AI और ML अपनी इंडस्ट्री में ग्रो होता है। So it was great session. Thank you, Darshit. It was pleasure having you with us on today. I love your insights and all the questions you answered and the great detail PPT you made in vivid detail. So thank you all the participants. Due to the time, we have to end this webinar. I think someone has questions. Okay. So if there is no question, yeah. So look in this webinar. Thank you to all the participants for joining this webinar. And thank you, Darshit. Thank you S1 team to give me a chance. Yeah, thank you for giving your all the participants for providing your precious time to attending this webinar. And one last sentence, like together we will learn, grow, and success with each other, and harnessing renewable energy for sustainable future continuous. That's our target only. Definitely, that's why we created as well. Now, see, आपको पता लगा सब एक साथ रहेंगे तो ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। अगर कोई कैंडिडेट है जो ज्वाइन करना चाहे तो कम्युनिटी भी ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, थैंक यू। Yeah, okay, sure. Okay, thank